whatsoever, or even to look forward, look beyond whatsoever is there in the law itself. And today, both the speakers like CA as well as the insolvency professional who heads from the front as an association also, All India Insolvency Professional Association, our old friend Manoj Anand ji. I know him for a very long since this association was been formed of, and the benefit to be given to the members and to the fraternity of the insolvency professional because of the challenges with the professionals are really been very big. And another speaker like insolvency professional is Arvind Saxena ji also. You see, like the today's topic connect with the today's topic. The relevance of the updates are very high, and the way this both the speakers are at their command, the skill and the knowledge, they will be delivering their best. Actually, the interface with the uh, other subjects or the other related bodies, many time we find like our R.K. Gupta ji has already shared. I request everyone to be on mute, or whosoever is holding the command, they can keep them in the mute. So you see, like the many different departments of the government, whosoever is involved there in the revenue side or the economic and commercial law, they have to be interface. They how the process to be streamlined, process to be captured, and with the objective of the insolvency and bankruptcy code, so that the time should not be wasted in between. Naturally, if we talk about whether it is the revenue authorities, they do not sometimes understands the IBC, and IBC is a specific law. Specific law always keep a position ahead than whatsoever the general law is. That is basically we all have to understand with whenever any general law which is there, but IBC has been brought in with a specific objective, and that has been more beyond whatsoever the general law is. So this act will prevail upon. So in the case of the differences between the two authorities, so IBC or the related mechanism will be having a much better privilege to prevail upon. So I'll not take much of the time, but I really appreciate the efforts of our this GIPA Professional Association, more particularly CA and insolvency professional and many other qualifications. Parveen Chaudhary, he has always been proactive in giving this position. रविंदर जी आप म्यूट पे कर लेंगे तो रविंदर कुमार जी yeah, so you see, like, and Suhasini also, this is a journey by which you gives the benefit to the others, and naturally giving benefit to the others means you are of this, your bent of mind is always towards the whosoever is in the system of the IBC, they will take advantage of the best of the knowledge given by the our speakers, those who are around us time to time because of the need of the hour. The knowledge always gives us the power to understand effectively the ways by which we can surpass any kind of the challenges whenever it comes in, so that we ultimately achieve the purpose of being a good professional who can serve to this for the objective of the IBC. So with these words, I'm really grateful and thankful to each and every participants also. You all know I'm one of the council member at the ICI, and I'll request or I'll really been make you available whenever you need me. I'm always there for the cause of the profession, whether it is the chartered accountancy or the other professional bodies I belongs to, or the insolvency professionals also. Thankful to one of you. Thank you very much.
Over to Suhasini. Suhasini, over to you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for your valuable insights for the quick process. Sir, I want to raise one issue before you. Yeah, tell On me. behalf of insurance professionals for the updation of CP hours. That is the main issue of our insurance professionals. Please look after that. Yeah, sure. I'll make sure कि I'll speak to the triple IPII where I used to be the board member. So I'll speak to them, and if need be, I'll be speaking to the IBBI also. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. सर इसमें एक थोड़ा सा मैं आपको इनपुट देना चाहूंगा कि जी। ये हमारी जो सीपी आवर्स है ये सिर्फ हमारी ट्रिपल IPI ही पास करती है। तो राहुल मदान जी को भी मैंने रिक्वेस्ट करी थी बिकॉज ये सीपी आवर्स की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमारे पास यहाँ पे 3 एजेंसीज हैं, एक हमारी सीए की, एक सीएस की और तीसरी सीएमए की। तो बहुत सारे लोग इस जबकि हमारी सीए की एजेंसी जो है दैट इज द नंबर 1। जितने इनके पास मेंबर जितने आईपीज हैं अप्रोक्सीमेटली 70% आर विद द सीए एजेंसी। बट देयर पीपल आर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं काफी ज्यादा टच में रहता हूँ आईपीज के। तो बहुत ज्यादा इनकी ग्रजेस हैं सीपी आवर्स की, या इनकी आगे बातचीत, इनसे कोई क्वेश्चन यानी कि कोई चीज पूछो फॉर्म्स के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो इनका पीआर है थोड़ा सा। तो सिंस हमारी है ये एजेंसी बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड इट्स आर एजेंसी। तो सर राहुल मदान जी एमडी है, मैंने उनको भी बोला था। तो आप बीइंग अ बोर्ड मेंबर सीपी आवर्स की और बाकी जो है बड़ी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स, these are very very small problems. I request you to be board member on behalf of whole IP community कि थोड़ा सा इस पे थोड़ा सा ध्यान दें। और जो सीपी आवर्स 6-6 महीने तक क्रेडिट नहीं होते। आप 6 बार उनको फोन करो तो वो कुछ फोन ही नहीं उठाता, जो कंसर्न यानी कि ऑफिसर है फोन। हम लोगों के, मेरे साथ ये दिक्कत नहीं आती बिकॉज वी हैव गुड कनेक्शन, तो हम तो अपने कनेक्शन को यूज करके कर लेते हैं। लेकिन एवरेज आईपी के साथ बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो प्लीज हर आईपी की क्या लैंग्वेज है, वो कहता है कि हम 20,000 रुपया साल की फीस पे करते हैं और उसके लिए हम अगर 1 या 2 बार फोन करते हैं तो एजेंसी से कोई जॉब नहीं आता। ऑन दी अदर हैंड सीएमए एजेंसी एंड सीएस एजेंसी इज गिविंग वेरी गुड सर्विस एज अ सर्विस। आई कैन टेल यू द नेम ऑफ सम आईपीज जो हमारी सी एजेंसी से शिफ्ट कर रहे हैं वहां पे सीएमए या सीएस के पास। तो that trend should be reversed, although it has started just now, but that trend should be reversed। तो इस करके छोटी थी, आई एम रियली सॉरी दैट आई स्पीक इन अ हाई पेज नोट। लेकिन मेरे को लगा मेरे बड़े भाई हंसराज जी, जिनको हम सदियों से जानते हैं, डिकेड से जानते हैं, वो आए हैं तो उनके सामने अपनी प्रॉब्लम रखेंगे तो हम आईपी ब्रदर्स, मेरे को और सब आईपीज को बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। माय ड्यू अपॉलॉजी फॉर स्पीकिंग इन हाई टोन। No. Thank you, मनोज भाई। जब तक हम डेलिब्रेट डिस्कस या इश्यूज को रेज नहीं करेंगे, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि whether it is the small things or the bigger things, unless until we come across or we bring across to the relevant person, so things will not be settled. I'm really grateful and thankful to Parveen bhai and to you also this has been brought to my notice, and I'll be taking this forward to the this managing director, and more particularly not limiting to the MD, but to the chairman also going forward, and to the board also, IBBI also, wherever it requires to be. So make sure I'll be ensuring it will be somewhere to be speed up. Thank you. We are really honored, Thank really you, honored sir. with your words. Thank you, sir. So I take the privilege of introducing the speakers for the webinar. We have CA Manoj K. Anand ji and IP Arvind Saxena ji. So I'll just give a very brief introduction about both the speakers. So Manoj Kumar Anand sir qualified as chartered accountant since 1988. He has experience in 36 years and as an insolvency professional 7 years, and he has handled close to 39 assignments. He has handled he's an advisory, and he has handled many cases in real estate, EPC, retail, textile, food, and he has worked in IBC assignments, MR Lands, Uncertain, and he's
advisory on many public sector and private sector banks, and sir has authored many articles and also written 2 books. And I take privilege of introducing Mr. Arvind Kumar Saxena, who is a chartered accountant and has experienced nearly 28 years of cross-cultural exposure in strategy, business development and operations and leadership. And his industry expertise, significant exposure in edible oils, soap and chemical industries. He has done his MBA in marketing management and BTech in chemical engineering, and he has expertise in sales, marketing, regional familiarity, leadership, people management, operational management, project management, and sir is an insolvency professional. I take the privilege of introducing both of them. Now the floor is all yours, Manoj sir and Arvind sir. Just I want to take 2 minutes to introduce Subhashini Ashokji from HIPAA. Is a Master in Commerce and Law, Associate Company Secretary, Advocate and Insolvency Professional. Subhashini has over 15 years of experience as Company Secretary, Insolvency Professional and Advocate. She worked with Ujjivan Financial Services Limited, Infotech, Bangalore Stock Exchange, Hyderabad Stock Exchange, and Brokerage House at Bangalore, and with a commodity trading company based at Singapore. She was a partner with one of the top insolvency professional entities, where she worked on restructuring of company under IBC 2016. Currently, she is founder and executive partner at P2S Niam Advisors LLP, who are partners with Alanco LLP, a reputed firm in multidisciplinary consulting firm, providing services in transaction advisory, legal due diligence, risk advisory, financial reporting advisory, ESG advisory, forensic accounting services, cyber security, IT risk consulting, and digital transformation, and so many more advisory services. Subhashini is currently functioning as a resolution professional of a large account for resolution debt size INR 1,500 CR, managing a critical division based governance company at going concern. She is also liquidator for one company and in 7 personal insolvency professional matters at NCLT. Subhashini is a triple gold medalist and university token LLB. Her hobbies include traveling, cooking, reading, etc. So with this, I hand over to Subhashini to go further. Please. आपकी आवाज नहीं आ रही है, स्पीकर ऑन कर लीजिए. Sir, have we completed the introduction, or you want me to introduce any? Yes, you can carry forward to invite Manoj Anand ji for his delegation. Yes, sir. Now we invite the speakers, Mr. Manoj Anand ji. The floor is all yours, sir. So actually, Oh, great. just 1 minute. What I request is, my discussion is very elementary. I am in primary section of this IBC. So what I request that let me finish this, then Manoj Anand sir will give the deep insight. I believe he is a very senior person, and my discussion will be very elementary, because I was told that we have to create awareness between the people, among the industry people, so that they should know what are the benefits of IBC. That's why I have prepared an elementary talk. If the permission of Praveen ji, Subhashini madam, then I can start, please. Yes, sir. Yes, sir. Please. Okay. Good afternoon to all of you. Thank you very much for giving me this opportunity, especially to Praveen sir, who has given me this chance to speak this much in such an important forum. And first of all, I am thankful to Dr. R.K. Gupta sir, who has brought me into this field and who has given me a lot of guidance to all levels, and that is why I am here today. I am special. I am just like a student or a class 1 student in front of all the speakers, or Mr. Hansraj, Mr. Anand. I am very junior to all of you. And let me tell you very frankly that Ms. Subhashini has introduced me that I am a chartered accountant. No, I am not a chartered accountant.
I am BTech in chemical engineering and MBA in marketing, and I have 30 years of experience in industry. That's correct. So with this, let me, because my discussion is elementary and it is not for IP people, it is for industry people, how IBC is going to supersede with the other allied laws. What basically, how it is going to beneficial to both creditors as well as to debtors. And it is how it is helpful to everybody, all stakeholders, whether it's labor, whether it's employees, or whether it's government authorities. So I have made a small PowerPoint presentation. Let me share my screen with you. Then I will come to it. Sir, I want to share one more information that our Manoj Anandji also associated with the GIPA Professional Association as co-chairperson of IBC and NCLT committee of GIPA Professional Association. So please carry on, Manoj Anandji, please. प्रवीण जी थैंक यू माय पीपी is absolutely ready. अरविंद जी ऐसा करना जैसे मेरे खत्म हो जाएंगे ना, then you can start your deliberation and all this thing here, please. Okay, sir. Okay. Yeah, because okay, first of all, I'm really honored that baton started by Mr. Praveen Jain was passed on to Mrs. Suhasini, and she's so learned, so handling so many big assignments and such a learned company secretary and is also a professional that is definitely add lot of value to us. होस्ट को मैं ये कहूंगा जरा जैसे ही कोई होता है ना तो जरा म्यूट कर दीजिए, हम अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे. मिस्टर सिद्धार्थ वाली यू आर टेकिंग इंडल्जिंग अ लॉट देयर. यस प्लीज. तो या स्वास्थी जी, बिकॉज हम लोग जब बोलेंगे ना तो फिर वो फ्लो हमारा थोड़ा सा खत्म हो जाता है. तो स्वास्थी जी वी वर रियली थैंकफुल. मैं प्रवीण जी के साथ होस्ट भी होता हूँ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ये वेबिनार्स के अंदर, टू वेलकम यू एंड सीइंग योर प्रोफाइल. इट वाज अ रियली ग्रेट प्रिविलेज. हमारे आर.के. गुप्ता जी जो हैं, ये तो हमारे क्या कहते हैं ना टीचर हैं. मैं इनकी एक सीक्रेट बात सबको बताता हूँ. जब सीक्रेट बात सबको बताऊंगा तो सीक्रेट रहेगी नहीं वो. इन्होंने कहा जी मैंने 1000 आरपी बनाने हैं. इस तरह का स्कल्प लेके अगर कोई आदमी प्रोफेशन की सेवा करता है, आई एम टेलिंग यू इट्स वेरी हार्ड व्हेन वी पीपल आर प्रैक्टिसिंग दिस लॉ, गेटिंग टाइम फॉर स्टडीइंग एंड ऑल दिस थिंग देयर इज रियली रियली वेरी पेनस्टेकिंग. जैसे मेरे आज चांस की बात है, 2 वेबिनार थे. एक सुबह आईपीसी के साथ था, सीएमए के साथ था, और एक हो गया था. चलो इन एनी केस वंस इन अ व्हाइल इट हैपेंस, सो वी डू इट. बट मिस्टर गुप्ता, हेड्स ऑफ टू यू for your kind deliberation, for taking pain and bringing IBC to such an height कि I think इस दुनिया के अंदर शायद आप ही एक अकेले ऐसे इंसान होंगे जो 1000 IPs बनाने का संकल्प लेके बैठे हुए हैं. और इन्होंने आज तक आई थिंक 100 के करीब IPs बना भी दिए होंगे. That's a marvelous achievement. Or maybe more than that. More than 400, sir. More than 400. Oh my God. Sir, सब लोग तालियां लगा मारिए. His contribution to the IBC is so immense that he deserves to be applauded. अगर ये क्या कहते हैं कुछ फिजिकल मीटिंग होती तो गुप्ता जी मैं स्टैंडिंग ओवेशन आपके लिए सबको कहता खड़े होकर करने के लिए. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. Making 400 IP is not a small thing. मनोज जी, हम भी इनकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट हैं. तो इनकी फैक्ट्री ऐसी है कि जो क्या कहते हैं एक बहुत सारे आईपीएस बना रही है. that's a very very satisfactorily and immensely. चलिए now let's come to the topic. सर ने गुप्ता जी ने 2-3 इशू रेज करे, इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएमएलए और क्या नाम इसका विद अदर अथॉरिटीज आल्सो. टैक्स के ऊपर लॉ काफी हद तक सेटल हो गया है. व्हाट माय लिमिटेड नॉलेज इज देयर. व्हाट वाज हैपनिंग वाज दैट कि एक बिंद्रा की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 41 के अंदर जो एक बैलेंसिंग चार्ज होता है
उसके अंदर ये जो और मैट का जैसे 115J की आपने बात करी, तो 115J के अंदर ऑलरेडी 3 साल पहले 3 4 साल पहले ये जंक्शन आ गई थी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कि आईबीसी कंपनीज के ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद रही बात टैक्सेबिलिटी की, बिकॉज हम लोग यहाँ पे जब भी बैलेंस शीट को रिकास्ट करते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग ऑडिट ऑफ आर फर्म इज स्पेशलाइजिंग इन डूइंग ऑडिट ऑफ सम लॉट ऑफ लिस्टेड आईबीसी कंपनीज आल्सो। तो जब भी हम बैलेंस शीट को रिकास्ट करते हैं तो ये क्रेडिटर्स को राइट ऑफ करने करके प्रॉफिट आ जाता था। जब प्रॉफिट आ जाता था तो बिंद्रा बिंद्रा की एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, उन्होंने कहा था कि सेक्शन 28 सबसेक्शन 4 का जो प्रोविजो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन केस ऑफ कैश लोन। तो इस तरह से वहां से भी एक्सक्लूड हो जाता था। अब रही बात सेक्शन 41 की, 41(1) के अंदर जो ये चार्जेबिलिटी थी ऑफ राइटिंग ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, ये एक थोड़ा सा इसके ऊपर लंबी बात है, ये टैक्सेबल है और नहीं भी है। तो इसको, और इससे भी ऊपर एक बात है, चांस की बात है कि जो मेरी आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, इसमें मैंने दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट करी है, जो लेटेस्ट जजमेंट है इनकम टैक्स के ऊपर, वो यानी कि मेरे इसके अंदर डेलिब्रेशन के अंदर आएगी, तो मैं उसको शेयर करके आप सब लोगों को बताऊंगा। As far as GST input and other things are concerned, earlier it was a very difficult situation. When I remember, जब हमने 2017 में प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी कि पुराने वाले डेटर ने कभी डेटर ने फाइल नहीं करी होती थी, जीएसटी पे नहीं करा होता था, ब्लॉक हो जाता था, और उसके बाद we could not file the return. तो उसके लिए सरकार came out, after presentation to the IBBI and the सरकार came out with a provision कि जहाँ पे उन्होंने ये करा कि जब भी कोई नया IRP RP आएगा तो वो अपने नाम पे जीएसटी का नंबर ले सकता है। और रही बात उसके जो पुराने नहीं है वो है वो देयर that has no relevance as far as new number is concerned। चलिए, एंड पीएमएलए इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल, इन पीएमएलए के केस में अगर हम उसको ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो चीजों में डिवाइड होता है। अगर सीडी ने अपनी कोई एसेट एक्वायर करा है तो पीएमएलए प्रोसीड्स, तो तब पीएमएलए का हक उसके ऊपर होता है। बट अदरवाइज यानी कि सीडी का कोई एसेट है और वो पीएमएलए वाले कहते हैं कि यानी कि ये एडजुडिकेट नहीं हुआ कि ये एसेट उनकी प्रोसीड से हुआ है या उसने नॉर्मल बिजनेस से करा, इन दैट केस पीएम आईबीसी विल ओवरराइड। हमारे यहाँ पे एक सेक्शन अभी डिस्कशन चल रही थी कि ये क्या अरविंद सक्सेना जी पूछ रहे थे इंडस्ट्री के हिसाब से कि आईबीसी किसको एक्सीड करता है कैसे नहीं करता। तो सर इसके लिए अब लिखिए एक सेक्शन है 238, दिस इज अ वेरी वेरी पॉपुलर सेक्शन। सेक्शन 238 का लिखा अंदर बड़ा क्लियर वैसे लिखा गया है कि आईबीसी इन लॉज को एक्सीड करता है और इन पॉइंट पे एक्सीड करता है, तो डेट इज ऑल। चलिए, ये तो एक ये मेरे भाइयों के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने कहा जो मेरी लिमिटेड नॉलेज है एटलीस्ट मैं आपके साथ शेयर कर लूं। नाउ लेट मी मूव टू होस्ट जी, मेरे को जरा स्क्रीन शेयर अलाउ कर दीजिए आप, so that I can start my PPT. हाँ जी, मेरे को भी अलाउ नहीं करा आपने, प्लीज करिए जरा। आप बोलिए। कार्ड ले लेना, 500 निकाल लेना। या प्लीज अलाउ मी माय स्क्रीन शेयर, रिस्पेक्टेड होस्ट। हाँ जाएंगे तो रास्ते में ऑटो का लगेगा ना, तो सब। हाँ तो 700 निकाल लेना, ताकि फिर हमको अलग से डालना पड़ जाएगा। अभी इसमें 900 रुपया है ना, तो 900 तक निकाल सकती हो तुम, तो 900 में ही काम चला लेना। 900 हाँ 900 1000 ऐसे भी हम निकालते हैं। हाँ, तो 936 रुपया है, तो 900 निकाल लेना। चल चलो कहा जी, जरा प्लीज इन्वॉल्व होइए अपने आप को और जरा स्क्रीन शेयर अलाउ करिए। Sir, you got the access? No, I have not got this. कौन एटीएम से पैसा आप निकाले थे? प्रवीण जी जरा सबको म्यूट भी कर दीजिए आप। सामने जो HDFC का है, एक्सिस के नाम से है, मतलब IDBI के बगल वाला। IDBI से ट्राई करना ना, उसमें से पैसा कटेगा नहीं तुम्हारा। विशाल जी, हम आपकी सारी पर्सनल बातें सुन रहे हैं, प्लीज म्यूट करिए अपने आप को।
Sir, Praveen sir has given access. Even he has muted all the participants. Can you उन्होंने share? म्यूट तो कर दिया, डेट इज ओके, लेकिन मेरा स्क्रीन शेयर कर नहीं आया। हेलो जी हाँ सर। जी सर, नहीं आ रहा स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर आप भी कर सकते हो सर, सुशानी जी के पास भी है। आ गया आ गया आ गया आ गया, अब आ गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। ओके सर, ओके। Okay, I would like to cover up my, this particular time. This is my very, very small introduction. I'm moving forward quickly. These are the two topics has been divided today's webinar. One is latest updates on IBC code and interface of IBC with other allied laws. तो मैं जो है लेटेस्ट अपडेट ऑन आईबीसी लूंगा। ये अप्रोक्सीमेटली मेरा 1 घंटे के आसपास का सेशन होगा। ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया, तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करके रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। तो जो भी किसी का भी जो क्वेश्चन होंगे, ही कैन आस्क मी इन बिटवीन। ओके, तो बेसिकली जो मैं एरियाज कवर करूंगा, मैंने ये करूंगा। 6 अगस्त को गाइडलाइंस आई थी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के ऊपर, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में लूंगा। इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। जो अभी हमारी टैक्स के ऊपर बात चल रही थी, यही लास्ट मंथ एक दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लीन स्टेट प्रिंसिपल को फॉर्म करा है कि रजिस्ट्रेशन प्लान सुपरसीड्स टैक्स क्लेम, इसको मैं थोड़ा सा डिलिब्रेट करूंगा। और उसके बाद है एक और जजमेंट अभी आई है, जिसके अंदर एचसीएलटी ने फर्म करा है कि अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं है, तब भी आप सेक्शन 7 की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओरल एग्रीमेंट। द जेनेसिस वाज ऑफ कंडक्ट ऑफ द सीडी एंड डेटर। एक वैल्यूएशन के ऊपर सर्कुलर आया है, वेयर बाय नाउ जैसे हम लोग सीए प्रोफेशन के अंदर यूडिन लेते हैं, तो इसी तरह से इनको भी एक नंबर लेना पड़ेगा। इनिशियली दे वर टेकिंग थ्रू इंटरनेशनल वैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, बट नाउ इट इज टू बी जनरेटेड बाय द आईबीबीआई। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अमेंडमेंट्स आई हैं आईबीबीआई की। ये क्या अमेंडमेंट्स है, ये 13 अगस्त को आई हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। बेसिकली 2/28 से 24 को सर्कुलर आए थे, यानी कि वॉलंटरी लिक्विडेशन का फॉर्म फाइलिंग पे और नॉर्मल लिक्विडेशन का फॉर्म फाइलिंग के ऊपर, इनको मैं थोड़ा सा अपडेट करूंगा। और एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के ऊपर ये आया है, क्या कहते हैं, एक डिस्कशन पेपर इशू करा है 23 अगस्त को, इसको मैं थोड़ा सा डेलिब्रेट करूंगा। लिक्विडेशन प्रोसेस जो एंडिंग है, इसके अंदर एक क्या कहते हैं 19 अगस्त को आईबीबीआई ने एक हमारे को नॉलेज दी है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और एक इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई है 13 अगस्त को, तो ये मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और एक लिक्विडेशन, रिस्पेक्टेड होस्ट म्यूट कर दीजिए, ये लोगों को बार बार कहने के बाद भी वो अपने आप को म्यूट नहीं करते। एक ये आया है फॉर्मेट ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ड्यूरिंग लिक्विडेशन पीरियड प्रोसेस, इसके बारे में एक प्रैक्टिकल आप सब लोगों के साथ मैं नॉलेज शेयर करूंगा। तो ये है, लेकिन मेरा मैक्सिमम टाइम लगेगा गाइडलाइंस फॉर कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स डेटेड 6 अगस्त 2024 के ऊपर। ओके, बेसिकली these are the guidelines and not circular and notification। तो मैं जब मैंने देखा, तो मेरे माइंड के अंदर यह आया कि इन्होंने ये गाइडलाइंस को इशू करी है, स्टार्ट ऑफ इशूइंग है सर्कुलर नोटिफिकेशन। तो तब मैंने अगर गूगल बाबा की थोड़ी सी सर्च करी, देन आई केम अक्रॉस टू नो कि ये गाइडलाइन सर्कुलर नोटिफिकेशन में क्या फर्क होता है। तो बेसिकली व्हाट आई फाउंड वाज दैट गाइडलाइंस आर रिकमेंडेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइडेड टू हेल्प इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन make decisions or take the actions in specific situations. While guidelines are often based on established standards, they are generally not legally enforceable. Circular is an internal order for procedural functioning. Circulars are usually not legally binding, but serve as a means of communication. Notification is a changes or insertion to an already existing act, section or clause by way of amendment or repeal. Notification binds all public after effective notification in public gazette। कहने का मतलब यह है कि जो गाइडलाइंस होती हैं, दे सिंपली एक्ट एज ए गाइडिंग फोर्स, उनके पीछे कोई लीगल बाइंडिंग नहीं होती, जो कि सर्कुलर के में थोड़ी सी होती है, पूरी तरह से नहीं होती।
आप सर्कुलर के अंदर बाइंडिंग इस तरह से होती है कि दे कैन सर्कुलर इज इन सजेस्टिव इन नेचर, और बट जो लीगल बाइंडिंग वाला बैक्स जो होता है, फोर्स होता है, वो थ्रू नोटिफिकेशन आता है, और जब नोटिफिकेशन किसी चीज का आता है देन इट इज देयर। तो दिस इज, तो आई ट्राई टू मेक डिस्टिंक्शन की गाइडलाइंस और उसमें क्या फर्क है। अब हम बात करें सीओसी के ऊपर जो गाइडलाइंस आई है 6 अगस्त 2024 को, तो ये जो गाइडलाइंस आई हैं, तो बेसिकली तो दीज आर वेदर इट विल हैव लीगल इफेक्ट और नॉट, in my opinion I've shared with you कि these are simply sharing out there, sharing for the IPs and all the stakeholders ये है। अच्छा, इसमें मैं एक बात आपके साथ और कर बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने आपसे बात करी ना, ये प्रैक्टिकली कितनी फोर्सफुल होती है या नहीं होती है, ये ओनली टाइम ही बताता है। कारण उसका ये है कि लेट मी टॉक टू यू फेस टू फेस, क्योंकि बेसिकली ये है कि आई जस्ट टेल यू, आई रिमेम्बर कि इन्होंने अभी पीछे की एक एक लेटर निकाला था IPPI ने। क्या लेटर था वो? उस लेटर के अंदर सिर्फ ये 18 जुलाई 2023 को निकाला था, जहां पे इन्होंने ये रिकमेंडेशन करा था कि IRP RP जो है वो लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 सबसेक्शन H के अंदर। अब ये एक सिंपली लेटर था। अब इस लेटर के ऊपर मोस्ट ऑफ द NCLTs आर एक्टिंग, और जितने भी IRP RPs हैं, अगर बेशक उनको COC रिकमेंड भी करती है टू पॉइंट एज एन लिक्विडेटर, तो उनको वो लिक्विडेटर अपॉइंट नहीं NCLTs करेक्ट कर रही, वो अपने उसमें से क्या कहते हैं जो उनकी पैनल्ड हैं उनमें से ये कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, चलिए ये तो एक चलते हुए बात होगी। अब दूसरी मेरी जो जो इसके ऊपर डिस्कशन है, प्रैक्टिकली IP फिलिंग फॉर CO। अब हम ये करते हैं कि जैसे वी मोस्ट ऑफ द पीपल आर वी आर IPs है, परहैप्स अगर कोई बैंकर भी है तो वी शैल हैव हिज फीलिंग आल्सो, लेकिन हमारी जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल फीलिंग है वो ये है जो व्हिच वी आर एक्सपेक्टिंग शुड हैव बीन द पार्ट ऑफ द गाइडलाइंस, एंड वेदर दैट इज देयर और नॉट दैट वी शैल सी लेटर। तो जैसे हमारे यहाँ पे मेनी टाइम प्रॉब्लम आती है पेमेंट ऑफ CRP कॉस्ट, टाइम लाइन के ऊपर टाइम के हिसाब से वो लोग डिसीजन नहीं लेते, स्पेशली जब वोटिंग करनी होती है तब नहीं लेते, जब उसके बाद क्या कहते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, वो जो बंदे वहाँ पे आते हैं डिसीजन लेने के लिए वो थोड़े से नॉट वेरी हाई रैंक्ड ऑफिसर्स होते हैं, दे ऑलवेज से कि हम अपने सीनियर ऑफिसर से पूछ के आपको बताएंगे, और उसके अंदर भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। उसके अंदर दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर इनकी कमेटी बनी हुई है टेकिंग केयर ऑफ ऑल द IBC इश्यूज, तो वो कमेटी जो है महीने में 2 दिन बैठती है, और वो अगर आपका 1 तारीख को आ गया और वो बैठी 25 तारीख तक, तो वो ये आपसे वोटिंग की एक्सटेंशन ही मांगते रहते हैं। फिर उसमें केवल ये होता है कि उनकी 25 तारीख को बैठी तो उसके अंदर एजेंडे बड़े आ जाते हैं, तो वो ऑल ओवर इंडिया लेवल की कमेटी, और स्टेट बैंक जैसे बैंक के लिए मेनी टाइम वो एजेंडा देख ही नहीं पाते, देन इट गेट शिफ्टेड टू नेक्स्ट मंथ, एंड दैट डिसीजन मेकिंग गेट डिलेड। एक जो और इशू आता है हमारा एज एन IP विद COC, कि हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है जब भी ये कोई लोन देते हैं लेते हैं करते हैं तो इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। दे हैव ए प्री सैंक्शन रिपोर्ट्स, दे हैव ए स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट, दे हैव ए लॉट ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट, दे डू विजिट टू द क्लाइंट्स आल्सो, दे हैव लॉट ऑफ इंटरनल रिपोर्टिंग देयर। लेकिन जब वो कंपनी NPA हो जाता है, IBC में आ जाती है, हम इनसे कुछ हेल्प मांगते हैं कि हमारे को ये रिपोर्ट शेयर कर दो, बिकॉज दैट कैन हेल्प यू इन लिक्विडेटिंग द डिफॉल्टर, बट इट रियली कम्स आउट टू बी देयर। तो एक एक हमारा इशू आता है, लॉट ऑफ पीपल स्पेशली यंग पीपल आर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड कि उनका नाम अनपैनलमेंट में हो ही नहीं पाता। पहले तो हम लोग जब शुरू में 2016-17 में आया था तो हम तो इजिली अनपैनल हो गए थे, और इनफैक्ट बैंक वाले अनपैनलमेंट के बाद ऑटोमेटिकली काम दे देते थे। लेकिन अब सिचुएशन ये हो गई है कि एवरी बैंक हैज पुट सम कंडीशंस कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो ऑल दिस थिंग्स के चक्कर में जो नए IPs आते हैं उनके लिए अनपैनलमेंट कराना ही मुश्किल हो जाता है, काम मिलने की बात हो रहा है। तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो इस तरह की गाइडलाइंस आई हैं तो इट शुड बी डन लाइक दैट। अब दूसरा इशू मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे हम लोग रिलेशनशिप ऑफ IP विद COC, generally it is good as far as the cases which I have handled, it has been satisfactory on both sides. COC has been helping us, we are taking command of the COC, और इनफैक्ट अभी मैं आपको आगे थोड़ी देर में बताऊंगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने तो जैसे है ना हमारे यहाँ पे we call in IBC we have the 4 pillars। कौन कौन से वो 4 पिलर्स हैं? एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो गया,
एक IBPI हो गया, एक NCLT हो गया, जुडिकेटिंग अथॉरिटी, और फोर्थ हो गया इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। परहैप्स जब बैंकिंग लॉ ने इसको क्या कहते हैं, सॉरी, इंसॉल्वेंसी कमेटी ने जब इसको इम्प्लीमेंट करा था IBC, तो उन्होंने शायद COC की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी नहीं थी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम COC हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और इनफैक्ट उनके जो कमर्शियल डिसीजंस है वो सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज नहीं हो सकते। एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि कितनी पावरफुल बात है ये COC के साथ। बट what, चलिए वो what I mean to say is that कि IPs की जो रिलेशनशिप है या वो CO के साथ, it's good generally, but many a times bitter also. Bitter in the sense कि COC treat us like recovery jet. IP try to follow the relevant rules and regulation. उसको रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको पता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी गलती करूंगा तो IBPI विल बी ऑन आवर हेड एंड दे विल कट डाउन आवर नेक। तो उस चक्कर में वो जो है वो क्या कहते हैं, समटाइम्स कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइज हो जाता है। But still I feel that we IPs have a very very good relationship with the COC members, and I call it like a sibling relationship. Sibling mean कि जैसे दो घर के अंदर एक होते हैं ना, दो भाई बहन होते हैं, या दो बहनें होती हैं, या दो भाई होते हैं, वो आपस में लड़ते भी रहते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद एक दूसरे को बड़ी पेन होती है अगर किसी को कोई नुकसान होता है या किसी को कोई दर्द होता है। तो और लेकिन ऑब्जेक्टिव उनका भी यही होता है कि वो किसी की तरह से वो खुद और साथ में जो उसका सिबलिंग है वो आगे बढ़े, मीनिंग देयर बाय कि आर IBC वी हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ वैल्यू मैक्सिमाइजेशन एंड टाइमलाइन। तो IP इज ऑलवेज की टू गो फॉर इट, एंड COC कितना करती है, उसके लिए क्या गाइडलाइंस आई हैं, दैट वी शैल स्टडी लेटर ऑन। एक जब मैंने इन गाइडलाइंस को देखा तो मेरे को ये लगा कि जो इसकी लैंग्वेज है ना, ये जैसे कई बार हम लोग कंप्यूटर के अंदर करते हैं ना कट एंड पेस्ट, तो इट इज प्रीडोमिनेटली टेकन फ्रॉम जो हमारा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स का रेगुलेशन के अंदर जो कंडक्ट है, जिसके अंदर वो लैंग्वेज जो है कि इंटेग्रिटी, फेयरनेस एंड ऑल दिस, वहां से कट एंड पेस्ट करके यहाँ पे COC के लिए उनको कर दिया गया। बट दिस इज अगेन अ वेरी my personal thought of everybody can deliberate on it also. अब इसके लिए मैं एक, अगर हम देखिए जब हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो इसके लिए मैं एक थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा, why this guidelines have come out to be there. There is a defined reasoning behind it कि why this guidelines have come out to be there. ये जो बेसिकली गाइडलाइंस हैं, क्या नाम इसका, इसकी ना अगर हम हिस्ट्री देखो तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हमारा ये है कि जब क्या नाम इसका जो IBC जब स्टार्ट हुआ था तो शुरू में ही अप्रोक्सीमेटली आफ्टर वर्किंग ऑफ 2-3 इयर्स एक डिस्कशन पेपर IBPI ने दिया था हमारे लिए। वो डिस्कशन पेपर जो दिया था तो वो दिया था एग्जैक्टली 7/8/2021 को। देखो मैं जितनी आपको बातें बता रहा हूँ ना, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, और ये क्या नाम इसका विद दी जो एक मैंने अपनी, चलिए मैं प्रेजेंटेशन आपसे शेयर ही कर लेता हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो, या तो एक 27/8/2021 का एक क्रेडिट्स के ऊपर इन्होंने IBPI ने दिया था। तो उसके अंदर इन्होंने व्हाट सिस्टम इन आवर IBP इज देयर विच वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट। जब भी इनको कोई चेंज लाना होता है रूल रेगुलेशन के अंदर तो ये एक डिस्कशन पेपर निकालते हैं। उस डिस्कशन पेपर के ऊपर जो उनको पब्लिक से फीडबैक मिलता है उसके बेस पे ये लोग आगे चेंजेस लाते हैं। तो इन्होंने COC से कंडक्ट के रिलेटेड एक 27/8/2021 को डिस्कशन पेपर निकाला था। अब वो डिस्कशन पेपर तो काफी लंबा चौड़ा था, तो मैं लेट्स बी इंटरेक्टिव विद ईच अदर। आई वुड रिक्वेस्ट दैट इफ पॉसिबल नॉट पॉसिबल बट इट शुड बी देयर कि वन ऑफ दी, जो आपके सामने स्क्रीन में देख रहे हैं, कि one of the audience do read all these briefing which I have noted down there, कि उस discussion paper के अंदर पैराज वाइज क्या लिखा हुआ था, which is material for which guidelines have come as on 6th of August. Can anybody come voluntarily forward, or I ask host to read it for that? I would love that if any of the our participants do come forward to read कि ये para 1 para 5 6 के अंदर क्या क्या लिखा गया है।
I can read it. Mamta ji, welcome, Manoj ji. welcome. Mamta ji is Thank my you, thank elder you. sister. Pleasure to hear you also all the time. So I can read it if you say. Para Yeah. one शुरू करना है? Before Mamta ji start, I must confess you that I've learned a lot of IBC from her only. She is Thank you, a, thank you so much. mentor for me also. Thank you so much for the honor. And Yeah, please wish you all carry the on, carry best. on. So Carry should I on. start from para one? Yeah. Okay. Para 1 talks about, on several occasions, questions have been raised in various fora about the action of COC being detrimental to objectives of the code. Hence, there is an urgent need to devise an appropriate mechanism to effectively guide the COC in its day-to-day functioning. That goes on to para number 5. During a CIRP, the COC is vested with the duty of trust and care. Para 6 talks about commercial wisdom of the COC, and the supremacy of the commercial wisdom of the COC is well recognized by the Honorable Supreme Court in Swiss Ribbons and SR Steel India cases. Para 7 goes on to say about the concerns raised by AA against the conduct of COC. In some cases, concerns have been raised by the AA regarding the capacity and conduct of the COC, and some instances where the conduct of the COC or some FCs have been under question are given below. 11 such instances have been pointed out. And then para 8 talks about 32nd report of the Parliamentary Standing Committee, where presently the conduct and decision making of the COC is not subject to any regulations, instructions and guidelines, etc. Many stakeholders have expressed the need of a code of conduct for the COC. The 32nd report of second. If you are comfortable, can you open up your video, please? If you are comfortable. Wait, but just allow me to read and then I'll do it. So the 32nd report of the Parliamentary Standing Committee, may kindly just raise up the screen, Manoj ji? Yeah, please carry on. हाँ, वो screen थोड़ा आपको ऊपर करना होगा. I've read that. कर दिया. Right. So para 10. Para 10 talks about the international practices where it is observed that internationally there are precedents whereby the COC with the CD is subject to certain rules and regulations for their conduct in the process. In UK, there exist elaborate guidelines issued by the Association of Business Recovery Professionals in conjunction with the recognized professional bodies on what might be expected of the COC. Similarly, in USA, creditors and other stakeholders play an important role in acting as a watchdog over a debtor's conduct. And the section 1102 of the US Code places very good responsibility of interest of those represented by the committee but not appointed on the members of the committee. And para 13 asked for public comments as follows. The board accordingly solicits comments on the following. And that is how this code of conduct has come, that whether a code of conduct should be specified by the board, any item of the draft code of conduct placed at annexure that should be omitted or modified, and any item that is not part of the draft code of conduct placed at annexure but should be included. And that's how you see that this has come out. Yeah, over to you, Manoj. Thank you very much. Thanks a lot. Now I stop this particular presentation. So, इसके बारे में, Mamta ji, this is the genesis of what discussion paper came out to be there. Right. Either you or other people can enlighten us. In brief, what happened in this discussion paper. So, as much as if somebody else is volunteering, then it is better. So I'll just wait for that. Yeah, please. So, Manoj, what we all know it though, that this discussion paper garnered quite a lot of comments and observations. And let me inform all my esteemed viewers that the IBBI really goes word by word and point by point. आप जितने भी discussion papers देखेंगे, they literally go point by point to say that this was discussed, this has been considered, ये नहीं किया जा रहा है because this is duly there in the law, या ये consider किया जा रहा है because yes, this is pertinent. So they believe you me, they delve on each and every point that goes to them by way of comments. That much I can assure you because I've seen the process very closely. And this was actually, honestly, even the bankers wanted some code of conduct. They always say that it is for us also to give it to the higher ups and to their authorities. Sometimes they just ask
the juniors, कहाँ लिखा है जो तुम इतना pressure दे रहे हो? Why is it that you are hurrying up, etc., etc.? So they say that if something is there in front of us, it also becomes easier for us to move the file upwards. So it is not that only we were asking for it, even the banking community was also very happy or is very happy to have this code of conduct. So Manoj, over to you. थैंक यू वेरी मच, थैंक्स लॉट, प्लीज ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल। ओके, Yes, yes. मैं ममता जी ने जो बात कही, मैं इसी बात को आगे एक्सटेंड करता हूँ। if we see the management of our law, let's, we people deal in taxation, we people deal in company law, we people deal in what you call it, GST and other things there. किसी भी और जैसे CBDT है, CBEC है, they are all managed law. IBBI has been the most active regulator who has been bringing so many changes in the regulation, firstly by bringing out a discussion paper, then based on the feedback of that discussion paper, they are continuously amending regulation to speed up or to make IBC a successful law. So that is there. But here, the one catch is lying here. What that catch is there? कि ये जो भी हमारे डिस्कशन पेपर्स आते हैं, इट हैज बीन क्वाइट फ्रीक्वेंट, यानी कि आप देखोगे तो हर 1-2 महीने के बाद एक तो डिस्कशन पेपर आ जाता है, एंड मी एंड ममता इज आर टेकिंग लॉट ऑफ वेबिनार्स ऑन व्हेनेवर एनी डिस्कशन पेपर कम्स आउट टू बी देयर। वी एज एन आईपा और जीपा और ये एनसीएलटी बार एसोसिएशन है, हम लोग मिलके इमीडिएटली डिस्कशन पेपर के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बट कैच लाइज देयर इज दैट कि इन दिस केस जो ये सीओसी के ऊपर डिस्कशन पेपर आया था, ये डिस्कशन पेपर जो आया था, ये पेपर आया था क्या नाम इसका 27/8/2021 को, यानी कि अगस्त 21 को आया था। दे टुक 3 years in issuing guidelines for that. So that is something which is not which was in our senior IP fraternity was felt as कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो इसके पीछे कारण ये था कि when IBBI thought of issuing some sort of क्या कहते हैं इसके ऊपर, जब वो गाइडलाइन लाना चाहती थी, जब भी जो भी करना चाहते थे, तो उसके ऊपर they got pressure from the RBI, whereby it was being told कि जो COC member generally public sector banks होते हैं, तो let's understand, feel it कि COC is constitute of public sector banks. It was being told empathetically to IBBI कि they are under very good control, शायद उनको इस तरह का कुछ guidelines की जरूरत नहीं है, and all this thing is there not required, as a result of which it get postponed or it get delayed also. But the pattern changed very quickly. And how that pattern changed very quickly, ये मैं आपको बताता हूँ कि चांस की बात है, एक COCOM का दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आई। वो जजमेंट आई क्या कहते हैं एग्जैक्टली 12/2/2024 को, उसको भी मैं आगे आके थोड़ा सा बताता हूँ आपको। तो जब उसके अंदर एक जजमेंट आई, उसके अंदर व्हाट हैपेंड, ये हुआ उसके अंदर कि जो भी जिनको हम सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं ये यानी कि जो सस्पेंडेड डायरेक्टर्स थे, दे वेंट टू द दिल्ली हाई कोर्ट एंड उन्होंने वहां पे जाके ये कहा कि मेरी COCOM करके कंपनी थी जी, जिसकी वैल्यूएशन 300 करोड़ रुपया थी, और जब ये कंपनी CIRP में आई तो इसकी वैल्यूएशन रहेगी 30 करोड़ रुपया। और इस 30 करोड़ की बात तो छोड़ो आप, इसके अगेंस्ट 40 करोड़ रुपए का CIRP के अंदर खर्चा हो गया। जब 40 करोड़ रुपए का इसके अंदर खर्चा हो गया, तो वो खर्चा क्या था, कैसा था, हम उसकी मेरिट में नहीं जाएंगे, लेकिन उस खर्चे के अगेंस्ट जो भी IRP RP लिक्विडेटर था, उसके ऊपर IBBI ने कुछ एक्शन लिया एंड दे वर सस्पेंडेड फॉर ए पर्टिकुलर टाइम आल्सो। तो मीनिंग देयर बाय कि देयर एलिगेशन वाज दैट कि यानी कि जो COC है, इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट एक नया वर्ड दिया गया हमारी इसको COC को। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि वी आर हैविंग 4 पिलर्स, IBC के अंदर हमारे 4 पिलर्स हैं, वी NCLT IBBI एंड IU। तो उन्होंने कहा जी जो COC है, ये मे बी इसको कोड ने पिलर नहीं कहा, बट COC इज GPS is global positioning system,
मीनिंग देयर बाय ये सीओसी इतनी पावरफुल है बिकॉज ऑफ देयर पावर ऑफ नॉट चैलेंजेबिलिटी ऑफ देयर कमर्शियल विजडम कि दे शो द पाथ टू एवरीबॉडी एंड स्पेशली टू द आईपी। और जब ये पाथ दिखाने के लिए हैं तो इनके लिए भी कोई ना कोई गाइडलाइंस आनी चाहिए, बिकॉज जैसे कहते हैं ना पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इस तरह से इनके लिए भी एक स्टैंडर्डाइज गाइडलाइंस आनी चाहिए। तो इन्होंने जब 12/2/2024 को जजमेंट दी तो दे इंस्ट्रक्टेड टू द IBPI he should come out for guidelines for these COC members also। और विद इन 3 months इन्होंने टाइम फ्रेम इन्होंने कहा कि अब 3 महीने के अंदर गाइडलाइंस चाहिए। एज ए रिजल्ट ऑफ विच these guidelines have come, it has come a little bit late, but ultimately आई। तो that was the reason कि डिस्कशन पेपर के बाद गाइडलाइंस पोस्टपोन हो गई, और उसके बाद जब दिल्ली हाई कोर्ट ने सूगैम के केस के अंदर करा तो देन देयर जब अब मैंने आपसे दिल्ली हाई कोर्ट के केस की बात करी है तो लेट मी शेयर लिटिल बिट डिटेल ऑन दैट पर्टिकुलर केस विद यू आल्सो। लेट्स मूव क्विकली प्लीज। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू, तो मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ बिकॉज उसके अंदर भी एक बड़ी मटेरियल बात छुपी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। या व्हाट इज, देखिए ये उन्होंने डिस्कशन पेपर के अंदर ये लेक्चर दिया था कि कोड ऑफ कंडक्ट कमेटी ऑफ क्राइटेरिया का क्या होना चाहिए। तो ये मैं आपके साथ जैसे मेरी बात खत्म होगी तो मैं आपके साथ ये चैट बॉक्स में शेयर कर लूंगा, तो यू कैन डाउनलोड इट एंड रीड इट क्विकली। लेकिन जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जिन प्रोविजंस को इस पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट के लिया वो प्रोविजंस मैंने हाईलाइट कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ जरा पॉइंट नंबर जी है, दीज आर बेसिकली 30 पॉइंट्स इन टोटल। तो उसमें उन्होंने पॉइंट नंबर जी में कहा कोऑपरेट विद द आईपी एंड डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटीज एट कोर्ट, ensure that decisions are made without any bias, favor fair coercion, undue influence or conflict of interest. Become fully aware of the position of the court and rules and regulation. It must have complete knowledge of role and so and so. Nominate representative with sufficient authenticity to participate in meetings and making decisions. Ensure that timeliness provided in the code and regulations are not breached. Not withhold release of insolvency, the resolution process, including fees of professionals. Bear the collective interest of all, shareholders in mind in all activities and, this thing there. Extend interim finance to the extent required for completion of the process. बेसिकली देयर आर 30 पॉइंट्स। मैंने इसमें से 5 या 6 पॉइंट आपको पढ़े। इन 5 या 6 पॉइंट्स को जो ऑनरेबल हमारी ये दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट थी जिसके बेस पे ये कोड ऑफ कंडक्ट की गाइडलाइंस आई हैं, उसके अंदर इन पॉइंट्स को कहा गया कि वी ऑब्जर्व एंड इट वाज द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, तो व्हिच आई हैव द गट्स टू स्टेट देयर, इट इज नॉट नथिंग ऑफ माय साइड, इट वाज द ऑब्जर्वेशन दिल्ली हाई कोर्ट की इन पर्टिकुलर 5 या 6 पॉइंट्स के ऊपर परहैप्स स्क्रूज ऑफ सीओसी नीड टू बी टाइटेंड अप। अब ये केस क्या था? ये केस की तो डिसीजन 12/2/24 को आया था। ये था मिस्टर कुंवर सचदेव जो कि डायरेक्टर थे वर्सेस ये जितने बैंक्स हैं इनका मैंने नाम लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट थ्रू देयर एंड दिस इज द अपील नंबर एंड सो देयर। तो दैट इज ऑल देयर। और इसके अंदर जो मटेरियल लाइंस थी, यानी कि सबसे पहले मैंने आपको लिया मिस्टर कुंवर सचदेव जी ने पॉइंट नंबर 1 अंदर कहा कि मेरे एक पर्टिकुलर केस के अंदर ये सीओसी ने या आईपी ने या नेगोशिएटर ने मिलकर क्या क्या गलतियां करी। तो ये उसकी प्रेयर थी, देयर वर लॉट ऑफ प्रेयर, बट सीओसी से रिलेटेड जो प्रेयर थी पॉइंट नंबर 1 के ऊपर यही मैंने आपके सामने रखी है। तो इनके क्या प्रेयर कह लो या एलिगेशन कह लो, व्हाट वाज यू थिंक ऑफ, इनके एलिगेशन ये थे कि सीओसी डिमिनिश द वैल्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम 300 crore to 10 crore. Sorry, I used the word 30, 30 crore. It was not 30 but 10 crore. Based on asset value as the balance sheet dated so and so. यानी कि हाई कोर्ट कोई ऐसे तो बात करेगी नहीं, उन्होंने बैलेंस शीट को देखा और कहा कि बैलेंस शीट के अंदर 274 crore की वैल्यू थी। COC not allowed interim finance to keep CD as a going concern. He was not allowed to bring an investor also. Huge CRP cost of 40 crore rupees incurred and IBPI took action against RP and liquidated. तो उसके बाद इस पर्टिकुलर जजमेंट में इफ आई गो इन डिटेल तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। अभी ऑलरेडी 5:05 हो गया, तभी मेरा 20% भी कवर नहीं हुआ, तो लेट मी मूव फॉरवर्ड बट आई कैन शेयर इट विद यू। तो जो हाईलाइटेड पोर्शन है तो उसके अंदर इन्होंने कहा जी ये बताया कि आईबीसी की लेजिस्लेटिव इंटेंट क्या है, क्या उस इंटेंट को सीओसी मीट कर पा रही है या नहीं कर पा रही। तो उसके बारे में इन्होंने पैरा नंबर 100 में लिखा कि ये कहा कि ये
COC, which is a pivotal body under the regime of CRP, can't be devoid of any code of conduct for its functioning and discharging obligation under the Prison Act, so and so, especially when we have the highest committee in our country जो IBC का take care करती है, that is Insolvency Law Committee. तो उसने ये भी रिकमेंड करता है कि COC के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए. तो IBBI क्यों नहीं कोड ऑफ कंडक्ट लेके आ रही? तो बेस्ड ऑन दिस थिंग दे डिड ऑल दिस थिंग देयर. जो उनके कंक्लूसिव रिमार्क्स है, दैट आई शैल डेफिनेटली रीड फॉर यू, बिकॉज ये कंक्लूसिव रिमार्क जो ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के थे, इट विल गिव अस इम्पोर्टेंस कि जो हमारी गाइडलाइंस आई हैं हम उनको एक बड़े अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे. ये क्या उनके कंक्लूसिव रिमार्क्स है, ये मैंने इसके लिए कुछ चेंज नहीं करा, आई कट एंड पेस्ट मैंने करा हाई कोर्ट की जजमेंट से, क्योंकि मेरे को ये बड़े इंपॉर्टेंट लगे. तो कैन लाइक ममता जी, somebody I would request come forward and read these remarks for the benefit of everybody. Please carry on. Come forward. Let's make it interesting. Preeti ji, most welcome. You see, the ladies are taking over the males also. That's very, very great. Thank you very much. Preeti ji, please read it. Thank you, Manoj sir. In the conclusion, para 83, in light of the aforementioned judicial pronouncements and discussion, it is vividly seen that the COC takes the driver's seat in this entire voyage of CIRP of the corporate debtor, and the commercial wisdom of the COC functions in the same way as the global positioning system works for the driver in any journey, leading the way to the intended destination. The commercial wisdom of the COC is placed on the highest pedestal in a sense that even the adjudicating authority is not empowered to lift the wheel on the merits of the decision. Considering the significant role the COC plays in the entire CIRP and the sanctity of the commercial wisdom of the COC, which is protected by the legislative mandate from unnecessary interference, there is a compelling need for the code of conduct or guidelines for the effective working of the COC in order to fulfill the bona fide objectives of the code. The need for a code of conduct assumes greater importance in light of the fact that once a decision is taken by the COC, the aggrieved party is deprived of the legal remedies, except to a limited extent. Therefore, what attains significance is that the decision-making process should itself be infused with sufficient safeguards of reasonableness, fair play, proportionality, and adherence to the principles of natural justice. Para 85, accordingly, this court is inclined to partly allow the instant petition with respect to prayer A. The महेश जी, प्लीज अपने को म्यूट करिए. महेश जी, प्लीज अपने को म्यूट करिए. Yes, carry on. The IBBI is directed to frame or finalize a code of conduct or guidelines in accordance with the stand set out in the instant case. Principles mentioned herein above and as other relevant consideration within a reasonable period of time, preferably within 3 months from the date of passing of this judgment, for the effective functioning of the COC without diluting the sanctity of the commercial wisdom of the COC and the legislative intent of the IBC. Thank you, Preeti ji. Thanks a lot. Thanks for helping me out. Thank you, Manoj sir. Thank you. देखिए, इनका मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूंगा because मैं another speaker also need some time. तो कहने का मतलब यह है कि हाई कोर्ट की जो आत्मा थी ना, उसने झंझोरा खा लिया जब उनको ये लगा कि ये 300 करोड़ की कंपनी 10 करोड़ में कन्वर्ट हो गई और 40 करोड़ रुपए की कॉस्ट आ गई उसको 300 करोड़ रुपए को 10 करोड़ में कन्वर्ट होने के लिए. when the concise of the high court was disturbed, so they come out with a strict this thing कि strict instructions to the IBBI कि आप इसके लिए गाइडेंस लेके आइए और within 3 months लेके आइए. तो ये था जेनेसिस ऑफ कमिंग आउट ऑफ द गाइडलाइंस जो हमारी 6 अगस्त को आई. अब वो गाइडलाइंस क्या है, लेट्स मूव फॉरवर्ड. शेयर माय पीपीटी विद यू फॉर दैट. चलिए, my due apology. I have to run little bit quickly because अभी और भी 2-4 टॉपिक्स हैं तो वो जो क्या कहते हैं अपडेट के लिए तो है. That is there.
Preamble at point number 2, retaining to those guidelines says most of them are under regulatory oversight of the financial sector regulator. That's talking about the members of the COC, जो कि generally public sector banks हैं. Our question is that are banks acting as their officers when an account become NPA, when it is expected that IRP, RP, liquidator should get recovery from the NPA account. देखिए, अगर मेरी जल्दी में कुछ अगर कोई बात कुछ समझ ना आए या कुछ बात आप पूछना चाहे तो प्लीज इंटरफेयर. I shall explain it. Preamble at point number 3 says that foster more effective and time-bound decision, but practically decision making process is very low. You know, the main grudge of VC and IPs is that junior level staff is asked to attend the meeting, who always ask for time for decision taking, as all the decisions are taken by competent authority who sits 1 or 2 times in a year. In a month. Other banks may be prompt. Pitfall is repeated extension of voting. थोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश करी बाय ब्रिंगिंग CRP अमेंडमेंट की, जब उन्होंने कहा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक दिन की एक्सटेंशन लोगे, और रिवीजन ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग बेस्ड ऑन देयर क्वेरीज टू जूनियर स्टाफ हु अटेंडेड द मीटिंग. व्हाट प्रैक्टिकली वाज हैपनिंग, हमने एक मिनट्स बना के दे दिए, वो जूनियर स्टाफ जब लेके सीनियर्स के पास गया या कमेटी के पास गया तो कमेटी ने कहा कि इस चीज की क्लैरिफिकेशन दो. अब उस चीज की क्लैरिफिकेशन अब कैसे आ सकती है? दैट कैन कम ओनली थ्रू रिवीजन ऑफ द मिनट, व्हिच इज अगेन अ वेरी वेरी रिस्की एंड बैड थिंग इन लॉ, बट दैट इज देयर. चलिए आगे चलते हैं. और IP related issues not included. जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि हमारे ये जैसे मैंने कहा कि मेरे को ये लगा है कि ये जो गाइडलाइंस है, जैसे हमारे जो IP की गाइडलाइंस है उनका करके करा गया, जो कोर COC से रिलेटेड इश्यूज हैं वो शायद थोड़े से उनका थोड़ा सा ध्यान ज्यादा देना चाहिए था. द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट इशू इज दैट लेट COC बी आस्क्ड टू मेक पेमेंट टू IRP, RP, liquidator promptly and make mandatory in case of replacement before relieving. This is a very big issue. किस तरह के इसको लिया गया है, ये हम आगे जो पॉइंट्स आएंगे उसके अंदर लिया उन्होंने, बट उस फोर्स के साथ नहीं लिया जिस फोर्स के साथ इन आवर ओपिनियन इट शुड हैव बीन टेकन. एक डिस्कशन हो रही है इम्पैनलमेंट ऑफ बैंक्स के ऊपर भी. इसके ऊपर व्हाट प्रैक्टिकली इज हैपनिंग कि हम लोग बैंक के साथ इम्पैनल हो जाते हैं, हमारे को एक असाइनमेंट दे देते हैं और हमारे को हमेशा ये लगा रहता है कि हमारे को इस बैंक से और भी असाइनमेंट मिले. तो उस चक्कर में समटाइम वी लूजेस आवर कोड ऑफ loses our independent also and try to satisfy COC in a more practical manner. So लेकिन when we get caught in the web of IBBI, then we pay very heavy price for that. तो चलिए अब जो भी है, और now these were the preamble of the guideline. Now let's examine each and every guideline. The first guideline is related to objectivity and integrity. Here there are the 3 or 4 points. Point A says follow relevant provisions of the code and regulation in letter and spirit. तो इसके बारे में मेरे को एक तो बड़ा कोर सा एग्जांपल मिला, वो ये मिला कि IBBI वाज अवेयर ऑफ इट कि ये COC मेंबर्स अपने जूनियर स्टाफ को भेज देते हैं और उसके बाद उनकी डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ इट उन्होंने सर्कुलर नंबर 10 अगस्त 2018 को, यानी कि आज से 4 साल पहले इशू करा था कि आप वही बंदे को भेजो जो बंदा वहां पे डिसीजन मेकिंग क्विकली कर पाए. बट with due respect to all my COC members, ये शायद प्रैक्टिकली इतना इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया, यानी कि इन अदर वर्ड इट इज नॉट फॉलोड इन लेटर एंड स्पिरिट. चलिए आप देखते हैं इस गाइडलाइंस के बाद हो सकता है इसकी लेटर एंड स्पिरिट के अंदर इसको करा जाए. पॉइंट नंबर B says maintain objectivity. What is objectivity? Objectivity of IBC is resolution and value maximization. I leave this to the wisdom of every IP here. Do they help IP for resolution and value maximization, or simply treat IPs as their recovery agent only? I leave it to the wisdom of everybody. Point C says share relevant information. Yeah, please mute yourself. Point C says share relevant information. ये मैंने अभी भी थोड़ा सा करा कि हम भी we people as a chartered accountant work as a bank auditor also. तो जब लोन की प्रोसेसिंग की बात आती है तो they have 3 stages: प्री सैंक्शन और सैंक्शनिंग एंड देन डिसबर्समेंट. देन उसके बाद चौथी स्टेज ये आती है कि वो उसको क्या नाम इसका, जब उसको मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग स्टेज आती है. जब भी वो ये सारे काम करते हैं तो होस्ट आई रिक्वेस्ट यू व्हेनेवर एनी वॉइस कम्स आउट टू बी देयर, यू प्लीज म्यूट एवरीबॉडी. मैं अपने आप को अनम्यूट कर लूं प्लीज. होस्ट आई रिक्वेस्ट यू टू टेक केयर फॉर दैट.
ओके तो इसके अंदर इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस दे डू टेक गेट स्टॉक ऑडिट डन, दे डू गेट इंस्पेक्शन रिपोर्ट डन, दे मेक विजिट समरी रिपोर्ट देयर। हमारे यहाँ पे डीपी रजिस्टर एक होता है, दे डू मेंटेन दैट आल्सो। जो स्टॉक की गाइडलाइंस होती है वो मंथली क्वार्टरली बेसिस पे होती है। इनफैक्ट अब तो कारों के अंदर भी इसको 2 साल पहले ही करा दिया गया था कि इन केस ऑफ एक स्पेसिफाइड लिमिट आई थिंक 5 करोड़ है, आपको ऑडिटर को रिकमेंड करना है कि वेदर ये जो स्टॉक स्टेटमेंट दी गई है वो किताबों से टैली करती है नहीं करती है। डिस्पाइट ऑल दिस थिंग आई मस्ट शेयर यू, देखिए हम सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ऑडिट करते हैं और स्टॉक स्टेटमेंट वगैरह वेरीफाई भी कई बार करके बैंक को देते हैं। ये हम सब लोग अंदर से जानते हैं कि वो स्टॉक स्टेटमेंट जो होती है वो सिर्फ इसी पर्पज के लिए बनाई जाती है ताकि वो डीपी स्टेट जो है वो प्रॉपर निकल जाए, whether that tallies with the actual or not। अब उसके एक्चुअल के ऊपर क्या नाम इसका ये बैंक वाले इंस्पेक्शन भी करते हैं, स्टेचुटरी डिटेल्स भी आते हैं, स्टॉक डिटेल्स भी आते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं या नहीं होते हैं, जो डू बैंक शेयर विद अस ऑल दिस थिंग देयर। I don't know, यानी कि I leave this platform open for you, but guidelines should have specifically taken care for this thing कि they यानी कि they should share it with the IP for the value maximization and timeline. Okay, the second guideline is related to independence and impartiality. We are very happy banks are maintaining all this thing there, in my opinion. The third guideline is related to professional competence and participation. Nominate with sufficient mandated approval of competent authority require a lot of improvement. The third guideline is also related to cooperation, supervision and timeliness. ये हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हम आईपीएस के चलते हैं, तो उसके अंदर काफी यूएन ट्राई आते हैं कि ये उस सीओसी ने ये कह दिया, वो कह दिया, ऐसा कह दिया, जबकि सेक्शन 27 है which give them enough power to replace them, but despite things are like that कि रिप्लेस करने की बात तो बड़ी दूर है। शायद we need more cooperation from them. These are my words only, nothing more than that. अब आते हैं facilitate expeditious appointment of various professionals. In my most of the cases it was very good and there। और इसमें एक थोड़ा सा इशू आता है कि जो मेरे को थोड़ा सा कई बार पेन करता है कि दे इंसिस्ट कि जो हमारा फाइनेंशियल क्रेडिटर उसी के बैंक के अंदर अकाउंट खोला जाए। तो मेनी टाइम हर बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, सब बैंक्स आर हैविंग अ पॉलिसी वेयर बाय दे इजीली ओपन अप द बैंक अकाउंट, बट सब बैंक्स हैव अ पॉलिसी दे टेक लॉट ऑफ टाइम। मेरे एक लिक्विडेशन केस के अंदर जो मैं करंटली हैंडल कर रहा हूँ, 6 महीने लग गए उस अकाउंट को आरपी के अकाउंट से मेरे सिग्नेचर चेंज होने में। इसमें किसी ऑफिसर की गलती नहीं है, उनका प्रोसेस ही ऐसा है, कभी उनका ऑफिसर यानी कि दैट इज देयर। बट ऑन द अदर हैंड आई हैव सम बैंक्स विद मी, अगर आप लोगों में भी कभी अकाउंट किसी ने खोलना हो तो यू कैन टॉक टू मी, जो 3 या 4 दिन के अंदर, चाहे वो लिक्विडेशन का अकाउंट हो या वो सीआरपी का अकाउंट हो, वो ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जिस ब्रांच जो भी आपके चाहेंगे आप उसके अंदर खोल के दे देते हैं। चलिए, द फिफ्थ गाइडलाइन इज रिलेटेड टू कॉस्ट, इशू ऑफ प्रॉम्प्ट पेमेंट नॉट एड्रेस्ड, रेस्ट इज ओके। पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं होती बिकॉज ऑफ एनी रीजन। अब तो बैंक वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप भैया इंटरम फाइनेंस ले लो और जब आपका कोई एसेट बिकेगा तो उसमें से रिकवर कर लेना, लेकिन जब हम इंटरम फाइनेंस की अप्रूवल के लिए जाते हैं तो दैट इज अ वेरी हार्ड नेट टू ब्रेक। The sixth and last guidelines is related to meeting of COC. It states regularly monitor the activities of the insolvency professional, seek rationale of decision action taken by him. अगर हम रेगुलेशन 31E की लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर अमेंडमेंट देखें तो that speaks volume about that कि यानी कि कितना हैवी हम लोगों को आज की डेट में मॉनिटरिंग करी जा रही है। और कोड में तो शुरू से ही सेक्शन 28 है और परहैप्स इसको भी और थोड़ा सा स्ट्रेंथन कर दिया जाएगा जब भी आईबीसी के अंदर अमेंडमेंट आएगी। पर रेगुलेशन 31 रे लिक्विडेशन का है, दैट्स बेसिकली वो एक ऐसा रेगुलेशन इंसर्ट कर दिया गया है 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले कि यू कांट मूव विदाउट SCC नाउ। It says related to belated claims, we are very happy. COC members really interfere and they say let RP or liquidator use their discretion to, accept the claim. It states to proactively share the latest financial statement, relevant asset from the client of so and so. ये मैंने ऑलरेडी आप तक डिस्कस कर लिया। और स्पेशली जब हम लोग सेक्शन 94 95 की एप्लीकेशन देते हैं उसके अंदर हमारे को फॉर्म ए के अंदर स्पेसिफिकली ये हमारे को वेरीफाई करना होता है कि ये इसके एसेट्स और लायबिलिटी क्या है। तो डिस्पाइट द फैक्ट कि जब उन्होंने लोन वगैरह सेंक्शन किया होगा या गारंटी वारंटी दी होगी तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या एसेट लायबिलिटी स्टेटमेंट ली होगी,
despite a statutory filing, sometimes it comes out to be there. It's not that it doesn't come out to be there, but the guidelines should have taken specifically care for that. कि ये क्या है, इसके बारे में कैसे है. So these were the only 6 guidelines. तो this is all from my side on the guidelines. तो अब इसके बारे में I just stop little bit. If anybody has any question, me, Mamta ji and Preeti ji and maybe other my co-speaker and others can also answer your queries, or otherwise I move to my next points.